السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام دین عارفانی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی عارفانی بلاگس۔ دوستو ابھی اس وقت میں آیا ہوں، ایک میوزیم بنا ہوا ہے جو دابیچی کے اندر ہے، مارکیٹ کے اندر ہے، سمجھو گھارو اور دابیچی کے بیچ میں بنا ہوا ہے۔ ایک میوزیم بنا ہوا ہے، اس پہ آئے ہیں، اس پہ پرانے زمانے کی چیزیں ہیں، وہ ہم آپ لوگوں کو وزٹ بھی کرائیں گے اور دکھائیں گے، اور اندر جا کے اور بھی ہم کو جو پرانی جدید چیزیں ہیں وہ بھی دکھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ میرے دوست ہیں، میرے ساتھ ہیں، قادر بخش ہے، یہ گلشیر ہے، اور یہ میرا دوست بیٹ مین پرویز عارفان بھی میرے ساتھ ہے، اور یہ میرا بھتیجا نعمان بھی ہے۔ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اندر، جو پرانے زمانے کی جو چیزیں ویزیں ہیں وہ ہم لوگ آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے، آپ ہی دیکھنا۔ چلو، اور دوستو یہ ہے ہمارا بیٹ مین پرویز بھائی نے ٹکٹ لے لیے، ابھی ہم لوگ دیکھیں گے اندر اور آپ لوگوں کو بھی پرانے زمانے کی جدید چیزیں دکھائیں گے۔ یہ ہمارا بیٹ مین گڈ بوائے ہے جی۔ دوستو یہ بھی ایک مٹکا نمازہ بنا ہوا ہے، یہ پرانے زمانے کے جدید دور کا یہ بنا ہوا ہے، 1000 سال پرانا، جو سسوئی پنوں کا دور تھا اس کے زمانے کے یہ بنے ہوئے ہیں۔ تو سسوئی پنوں کو میرے خیال میں پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، یہ اس کا میوزیم ہے اور اس کے نام سے یہ میوزیم ہے، اور اس کے پرانے زمانے کی چیزیں وغیرہ سامان وامان سب یہاں پر رکھا ہوا ہے، اور میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سب پرانے زمانے کے، مطلب پرانے زمانے کی جو مٹی ہوتی تھی اس سے یہ بنا ہوا تھا۔ یہ مٹی کے پیس بھی لگے ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے جو لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پانی کے اندر ڈالتے تھے، پتہ نہیں وضو کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کرتے تھے، یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اس ٹائپ سے بنا ہوا ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی مٹی سے بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں جگہ بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں کوئی قلعہ بنا ہوا ہے، یہ چیز بھی ہے، اور آپ کو آگے بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو لڑکی بیٹھی ہے انگریز ہے میرے خیال میں، یہاں سے مطلب جو کھدائی کرتے تھے پہلے اس زمانے کے لوگ تھے، ان لوگوں نے اس جگہ کو دریافت کیا تھا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزدور بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس پہ یہ کھدائی کا کام بھی ہو رہا ہے، اور ساری طرف یہ فوٹو وغیرہ لگی ہوئی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ چیزیں پہلے یہ بھی گرک تھی، یہ بھی ٹھٹا کے اندر ہی ہے، سمجھو ٹھٹا کے آس پاس ہی ہے، پہلے یہ دریافت نہیں تھی، ابھی جا کے اس کو دریافت کیا ہے، ابھی جا کے اس کو نکالا ہے۔ اور پرانے زمانے کی جو یہ مٹکے جو مٹی کی چیزیں جو برتن وغیرہ تھے وہ بھی ان لوگوں نے یہاں سے دریافت کیا ہے، اور اس کے میوزیم کے اندر چاروں طرف جو مطلب فوٹو لگے ہوئے ہیں جو ان لوگوں نے یہاں سے چیزیں دریافت کی تھی، اور اس کے اندر جو کھدائی بھی کی تھی، اور بھی آپ کو ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو ہمارے چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر قسم کے پتھر رکھے ہوئے ہیں، پرانے دور کے جدید پتھر رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بلیک پتھر رکھا ہوا ہے، وائٹ پتھر رکھا ہوا ہے، اور یہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں۔ اور پرانے زمانے کے جو پتھر ہیں، قیمتی پتھر اس میوزیم کے اندر، ہار وغیرہ یہ پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں۔ پرانے زمانے کے جدید دور کے جو پرانے زمانے کی چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں، اور یہ کنگن ٹائپ بنے ہوئے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چمچ، پتہ نہیں کون سے دھات کے بنے ہوئے، سوئی ہے، پرانے زمانے کی جو سوئیاں ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے کانٹے بنے ہوئے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹائپ کے ہتھیار ہے، پتہ نہیں کون سی جگہ پر یہ استعمال کرتے تھے، کون سے نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ پرانے زمانے کی مطلب کینچیاں ہیں، پرانے جو کھنجر ہوتے تھے، جو اس طرح کی جو چیزیں نوکیلی ہوتی تھی، یہ سمجھو ہزاروں سال پرانی یہ چیزیں، چھوٹے چھوٹے سے ہتھیار بنے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر بنی ہوئی، اور یہ پتھر سے بنا ہوا ہار وغیرہ ہیں، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جانوروں کی مطلب بنایا ہوا ہے، اونٹ ہے، بیلے، گائیں، یہ چمچ وغیرہ ہے، اور یہ برتنوں کے ہیں، یہ برتن بنے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ اس کا نقشہ ہے دوستو، یہ ہے اس کا میوزیم کا پورا نقشہ، یہ نقشہ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانے مٹکے وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں،
म्यूजियम के मटके बने हुए हैं, और ये भी मटके हैं, ये भी मटके बने हुए हैं। और ये दोस्तों ये जो जो चीज़ें हैं, ये जो सारी जो चीज़ें, ये समंदर की चीज़ें हैं, समंदर से निकलती है, उसके हार बने हुए हैं। और जानवरों के अंदर जो दांत होते थे, जानवरों के पता नहीं मछली के दांत है, कौन कौन से जानवरों के दांत है, वो भी सारे हैं। ये सारी जो चीज़ें आप देख सकते हैं, ये समंदर के अंदर से लोगों ने दरियाफ्त की थी उस दौरान, उस वक्त ये की थी। वो सारा चीज़ दोस्तों पुराने ज़माने का कदीमी से कदीमी चीज़ें दरियाफ्त की हुई है, ये पीआर म्यूजियम। और ये आप देख सकते हैं चीज़ें, और बाहर जाके आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं, कोशिश करते हैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, और आप देखना, और हम आपको बाहर भी जाके दिखाते हैं। जी दोस्तों, जी दोस्तों, आपको मैंने म्यूजियम भी दिखाने की कोशिश की थी। वहाँ पर पुराने ज़माने के बर्तन भी रखे हुए थे और पुराने ज़माने के पत्थर भी रखे हुए थे, वो हमने आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश की थी। और जो ये जो जगह दरियाफ्त हुई थी, ये भी समझो हज़ारों साल पुरानी ये जगह भी बनी हुई है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश। आप दोस्तों देख सकते हैं पुराने ज़माने की जो ये दीवार बनी हुई है, पत्थरों में बनी हुई है, ये भी दोस्तों, ये भी दरियाफ्त हुई हुई है। ये बहुत लंबी दीवार है दोस्तों, ये इतनी बड़ी लंबी दीवार है, और ये आप दोस्तों देख सकते हैं। और ये झील भी बनी हुई है पानी की। दोस्तों ये आप देख सकते हैं हम लोग कितना ऊपर चढ़ के आए हैं, और हमारा सांस फूल गया, हम लोग थक चुके हैं, और आगे भी हम आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं पूरा गर्क हुआ हुआ है, पूरी जगह ये गर्क हुई हुई है। और इस तरफ आप भी देख सकते हैं, वो सामने बनी हुई वो मस्जिद है, सामने मस्जिद है, ये पत्थर की अभी तक दीवारें वगैरह बनी हुई है। और आप इस तरफ भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है, ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों। और हम आगे कोशिश करेंगे, दोस्तों से पूछते हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं। यहाँ हमारा मेरा जो भाई है बैटमैन परवेज खान भी आया हुआ है, ये बैठा हुआ है, मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त। जी दोस्तों, जैसे कि हम लोग यहाँ विजिट भी कर रहे हैं और घूम रहे हुए फिर रहे हैं, पुराने ज़माने की चीज़ें भी देख रहे हैं। और यहाँ मेरे साथ परवेज भाई भी है, ये समझो हमारा बैटमैन है, यहाँ से भी बैटमैन है और यहाँ से भी बैटमैन है। परवेज भाई अच्छा ला खैर कुछ मजे में हो इतने केड़ा चीज़ आहिनि, केड़ा नज़ारा आहिनि, केड़ा ना आहिनि, देवा सब कुछ आहे, छा छा आहिनि। दरिया आहे, हीअ असां ॿुधो आहे त हीअ गर्क थियल शहर आहे छा? हाँ इलाही टाइमनि खां पुठियां आहे। गर्क आहे, हाँ पोइ हुनखे माना दरियाफ़्त हींअर कयूं आहिनि छा? जी दरियाफ़्त माना हुनखे खुदाई ॿुधाई हींअर कयूं आहिनि छा? जी हाँ पोइ माना दरियाफ़्त थी वञे न। हाँ पोइ हुते ॿियो कहिड़ी अहिड़ी चीज़ आहे त पाणी वग़ैरह हिते आहे कोई? पानी वगैरह वो साम्हूं आहे, छा आहे हिते दरिया वरिया आहे छा? समंदर आहे, समंदर आहे, ॿियो हुते छा आहे, कश्तियूं वश्तियूं हलनि सब थियूं? कुछ हुते हलनि पियो। उहो असांखे तव्हां ॾेखारण जी कोशिशि कंदा? हाँ हाँ चलो भाई हम लोग अभी चलते हैं परवेज भाई के साथ, हाँ वो हमको विजिट भी कराएंगे और देखते हैं घुमा रहा फिरा रहा है परवेज भाई। जाके पानी में हम लोग जा रहे हैं, उधर जाके आपसे मिलते हैं और आपको पानी भी दिखाते हैं, फिर आपसे बातें भी करेंगे। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे जो ये दरिया है, ये दरिया समझो है तो पुराने ज़माने में ये भी दरिया मौजूद था, और यहाँ पर एक धोबी था। इस दरिया के उस तरफ पहले गांव था घारो शेर, वहाँ पर धोबी कपड़े धोता था, और भी धोबी थे, ये भी धोबी था, तो वहाँ पर ये कपड़े धो रहा था, तो एक संदूक तैरती हुई आ रही थी, तो उस धोबी ने जाकर उस संदूक को दरिया से बाहर निकाला तो देखा तो उस संदूक के अंदर एक छोटी सी बच्ची थी। दोस्तों ये कहानी तो बहुत लंबी है, मगर मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ, क्योंकि फिर उसने उसको पाल पोस कर उसको बड़ा किया, तो बड़ी हो गई, जवान भी हो गई, हसीन खूबसूरत हो गई थी वो लड़की, इतनी खूबसूरत थी, तो सब उसके ऊपर हैरान हो जाते थे। तो ये पुराने ज़माने की बात है, तो बलोचिस्तान का एक बादशाह था, उसका नाम था पुन्नू, वो यहाँ पर सिंध के अंदर आया हुआ था, बलोचिस्तान से सिंध की तरफ आया था, यहाँ तिजारत के हवाले से
पता नहीं किसके हवाले से यहाँ पर ये आया था। तो उसने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर घूम रहा था, फिर रहा था, तो उसने उसी बच्ची को देखा था जो बचपन में उस धोबी ने उठाया था। उसका नाम, वो बड़ी भी हो गई थी, उसका नाम था ससुई। वो ससुई उसका नाम था, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी वो। फिर उसने जो बादशाह था बलोचिस्तान का, उसका नाम था पुन्नू। उसने उसको देखा तो ये उसके ऊपर समझो आशिक हो गया था, उसके ऊपर ये फिदा हो गया था। तो वो जो लड़की थी उसको पसंद आ गई थी। तो वो बात भी कर रहा था, देख रहा था कि किससे मैं बात करूं, किससे नहीं बात करूं। तो इतनी हसीन और खूबसूरत लड़की थी। फिर उस बादशाह को पसंद आ गई थी पुन्नू को, और ससुई ने भी उसके साथ प्यार करना शुरू कर दिया। ये दोनों प्यार करते थे, एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। तो दोस्तों मैं शॉर्ट में बात बता रहा हूँ आपको, इन दोनों में आपस में प्यार मोहब्बत हो गया था। फिर पुन्नू ने कहा मैं अपने मुल्क जा रहा हूँ, वहाँ से वापसी आऊँगा। मैं जो उसके जो पुन्नू के माँ बाप थे वो भी बादशाह थे, बोला उससे बातचीत करके फिर आपसे आके मैं शादी करूँगा। तो बादशाह वापसी चला गया, अपने वतन चला गया था। तो उसने बोला मैं बात करूँगा, फिर वापसी आऊँगा, आपसे शादी करूँगा। ठीक है, तो वो बादशाह पुन्नू चला गया था। तो ये इसके लिए यहाँ बैठ के ससुर इंतज़ार कर रही थी। तो वो पुन्नू नहीं आया। काफ़ी मतलब अच्छा गुज़र चुके थे, फिर भी पुन्नू नहीं आया। फिर ससुर ने क्या किया था कि यहाँ से पैदल निकली थी बलूचिस्तान की तरफ। पैदल ही पैदल जा रही थी, पैदल ही पैदल जा रही थी। और आपको मैं आगे भी दिखाऊँगा ये किस जगह से पैदल जा रही थी, किस जगह से नहीं जा रही थी। ये जो पूरी जो ये पहले पूरा ये आबाद था। फिर बेचारी सस्सी इंतज़ार करती रही कब पुन्नू आएगा, कब पुन्नू आएगा। तो उसके वो प्यार के लिए वो फिर उसके मुल्क जाने लगी। तो ये सफ़र में जा रही थी, पैदल ही पैदल जा रही थी। तो ये जा रही थी तो एक रास्ते में सस्सी जो थी उसको एक लड़का मिला। वो बकरियाँ चरा रहा था, जो चरवाहा कहते हैं, वो जंगल के अंदर बकरियाँ चरा रहा था। तो उसने देखा कि इतनी खूबसूरत लड़की आ रही है, तो वो उसके पास आ गया, उस ससुई के पास आ गया। बोला इतनी खूबसूरत तुम लड़की हो, तुम मुझसे शादी करो। तो ससुई ने उसको मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। वो ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा था ये वो। फिर वो उससे ससुई थी उससे भी भागने लगी। भागती-भागती उससे जान छुड़ाने की कोशिश में वो भाग रही थी, वो उसके चरवाहा उसके पीछे ही आ रहा था। तो इतना वो परेशान हो गई थी, वो भाग रही थी। फिर अल्लाह ताला से दुआएँ की कि अल्लाह ताला से दुआएँ कर रही थी, अल्लाह ताला कि इस ज़मीन को आप फाड़ दो ताकि इस ज़मीन के अंदर मैं समा जाऊँ। फिर अल्लाह ताला ने उसकी ससुई की दुआ सुनी, तो ज़मीन के 2 टुकड़े हो गए और ससुई उसके अंदर समा गई और ज़मीन बंद हो गई। फिर काफ़ी अरसे हो गए। फिर पुन्नू ने कहा कि जो ससुई को जो मैंने पसंद किया था, मैं ससुई के वतन जा रहा हूँ, तो ससुई के पास जाऊँगा। तो पुन्नू आ रहा था, उसी रास्ते से पुन्नू आ रहा था। तो उसी जंगल से इस जंगल में किसका दुपट्टा है, ये वो किस चीज़ का दुपट्टा है। तो वो परेशान हो गया। तो उसने भी अल्लाह ताला से दुआएँ की कि उसको भी पता चल गया, ये महसूस हो गया था कि इसके अंदर ससुई है कि नहीं है। और अल्लाह ताला ने उसने दुआएँ की थी पुन्नू ने, जो बादशाह ने, कि अल्लाह ताला आप इस ज़मीन को खोल दो, मैं ससुई के पास जाना चाहता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने वो ज़मीन खोली, फिर वो भी ससुई के साथ अंदर दफ़न हो गया। उसका जो मज़ार है वो मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान की तरफ ये ज़रूर दिखाऊँगा और वो आपको भी मैं विज़िट कराऊँगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमको सपोर्ट करोगे तो हम और भी अच्छी वीडियो बनाएँगे। आपका साथ रहा तो इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएँगे। हो सके अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू।